साथ साथ बताएं कि जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, क्या वो everyone can see that, right? Okay, thank you. First of all, a brief overview कि जो climate change है basically, we often जब हम mental health awareness की बात करते हैं या जो psychological health होती है उसके बारे में, तो climate change is one of the leading things कि जो human psyche को affect करता है, and it affects all of the domains of the psychological state जो climate change होता है. और आज के सेशन में मतलब विल जस्ट प्रोब अ फ्यू थिंग्स कि मेंटल हेल्थ कैसे चेंज होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग इन आवर कंट्री एज वेल. मतलब गर्मी ज्यादा से ज्यादा है और जो सर्दी होती है वो भी ज्यादा से ज्यादा होती है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली जो फिनोमेना है उसके लिए हमें मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. आप में से किसी को मतलब इसकी डिफरेंशिएशन पता है? आई वुड लव इट इफ एनीवन कैन टेल मी अबाउट इट. Okay, then I'll start with myself. I'll just tell it myself. Basically, जो global warming है, that means कि जो Earth है, the entirety of the planet, that is being warmed up as we speak. Ozone layer की depletion होती है because of the sun and the depletion of ozone layer. The Earth is considerably warmer than it used to be. और जो climate change है, basically that is the effect and that is the change caused by global warming. तो जब हम ये दोनों terminologies use करते हैं, we have to know कि global warming is basically the warming of the earth, the entire earth, and climate change are the consequences of global warming. अब्दुल रहमान, I would really appreciate अगर आप अपना mic mute कर दें, unless you want to ask something. Okay, so this is a summary of the difference. Agar just to add up to your information, कि global warming is the rising of Earth's surface, and climate change basically global warming के side effects हैं. So that's the main difference between the two. After that, how does climate change basically impact psychological well-being? तीन domains हैं which are affected by climate change. Hello to the newcomers. We've just started with the session, so I hope I'm sorry for skipping out my introduction. जो new लोग जो join किया. My name is Sarineen and I'm a clinical psychologist. And आज का session है on the effects of climate change on psychological well-being. Okay. So जो climate change है basically वो mental health को तीन types में affect करता है mainly. That is stress, anxiety, PTSD. Other than that, climate change has a major effect on our behaviors which are related to criminality. जो crime है, उसके बाद economic opportunities, economic state of a country, PTSD of mental disorders which are created by climate change. So these are basically the major disorders जो climate change की वजह से affect करते हैं. Sometimes a person can be fine, उनको कोई problem नहीं होगा, but due to climate change in the recent years, you will notice that people have been developing psychological disorders. Even though उनकी personal life में there is nothing wrong with them, their childhood was fine, their standard of living is fine, but they're still mentally affected. और फिर they don't know the reason कि what is causing this mental trauma and mental distress. So one of the things we have to probe जब इस तरह मतलब people come कि climate change, it affects the
person's psyche. और उसमें जो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज PTSD, डिप्रेशन, एंजाइटी. फिर एक न्यू फिनोमेना है दैट इज नोन एज क्लाइमेट एंजाइटी. क्लाइमेट एंजाइटी इज बेसिकली नॉट इन द DSM येट, लेकिन ये उसकी जो थर्ड कैटेगरी है DSM की, it has been proposed into it, and it's also been proposed as to be incorporated as a clear cut solid separate disorder. उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स. क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑल ऑफ दीज थिंग्स अकर. Okay. Before we talk about mental health and climate change, I think it's very important that we know what's going on in our country regarding to climate change. So I've presented a few statistics just for your information. Pakistan is the 5th most vulnerable country to climate change. With the population जो हमारी है 241.5 million, we are more prone to climate change than a lot of countries. Sure. And after that, there's a history of top 10 natural disasters जो पाकिस्तान में 47 या उससे पहले भी आ चुके हैं. So as you can see from the slide, these are the top worst natural disasters जो पाकिस्तान में थे. Quetta earthquake, 45 Balochistan earthquake, excuse me, 1950 floods थे. फिर East Pakistan before 71, there was a cyclone जिसने 5 lakh people it killed. Then Hunza earthquake, droughts हमारी country में बहुत आते हैं, floods आते हैं. I'm sorry, I'm continuously admitting people. So if I stop, that means कि मैं admit कर रही हूँ. Should we continue? Carry on, please. Thank you. After that, जो recent आए थे वो 2007 में बलूचिस्तान में जो cyclone आया था, that killed around 700 people. फिर 2010 में floods थे, और जो अभी recent आया था 2022 में जो floods आए थे बारिशों की वजह से. So उन्होंने basically they did a loss of 3 trillion rupees. And when we talk about these statistics, जिनमें मैंने सिर्फ अभी deaths include किए हैं, we do not talk about the affected people. ये तो सिर्फ deaths हैं. What about the people who survived? What about the people who migrated to different places? What about the people जो displaced हो गए थे? So all of the survivors of these floods and these natural catastrophes, they're basically impacted by climate health. Okay, so basically we've noticed कि जो Hunza और जो northern areas हैं, if anyone is into reading research articles, they will find out कि जो northern plains होते हैं उनमें जो लोग होते हैं they are more prone to depression. उनमें जो mental distress है वो ज़्यादा होता है, और उनमें suicidal rates और tendencies भी ज़्यादा होती हैं. And same goes for the people जो सिंध के region में रहते हैं. And one of the main things कि इस चीज़ पे इतनी importance क्यों नहीं दी जाती, because as we know 2019 और 2020 में एक influx हुआ था of suicides, जो हुंजा की plains में भी था और फिर थर deserts में भी था, कि उन region से suicide rate बहुत ज़्यादा हो रहा था. उसके बाद 2022 के floods के बाद millions of people were displaced. लेकिन what happened was कि government ने subsidies provide की, they just relocated and rehabilitated them. लेकिन what about the mental health of those people? So इस तरह की चीजें they are often overlooked कि जो surviving victims हैं, how is their state of psychological well-being. Additionally to this, you will notice कि कभी के बार there are some victims of earthquake जो 2005 में हुआ था, who are still going through psychological distress because of that earthquake. उनको अभी तक PTSD होती है. Similarly, जो इस 2022 के floods थे, वहाँ से भी a lot of people developed PTSD, anxiety, stress, a lot of these disorders. So, I mean, has anyone ever wondered कि how these people they manage their mental psyche? Yeah, is there anything जैसे psychological first aid response होता है काफी countries में?
Yes, seasonal affective disorder is one of the things जो urban areas में mostly होता है. So basically the whole gist of this was to present the statistics कि हमारी country कितनी climate prone है. और उसके बाद जो mental health है हमारी country में, एक तो वो stigmatized है. It's often shamed. We don't talk about these things. और उसके बाद even if we do talk about it तो हमें शन कर दिया जाता है कि mental health doesn't exist. और अगर कोई बोले कि because of climate change they have developed PTSD या other psychological disorders, तो people find it very hard to believe कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है. Then we'll talk about this new phenomena, clarity. मतलब what does it actually mean? What is this phenomena? Okay, so basically climate anxiety, जब आप when you go through natural disasters and calamities, तो उसकी वजह से there's a fear in your brain. कभी कभार हमने notice किया होगा, we often experience earthquakes, right? और उन earthquakes के बाद sometimes हमें उसके after shocks हमारी जो subconscious है उसमें रहते हैं. वो इस तरह की, मतलब earthquake से पहले some people would take a lot of time in their washrooms. And after the earthquake, वो जल्दी जल्दी अब नहाते हैं in fear कि अगर earthquake आ गया तो what would happen? So these little accumulations of your daily behavior, they compound into climate anxiety. ये इस तरह इसकी knots, मतलब they add up and then they form climate anxiety. और उसकी वजह से the thing is कि the person becomes obsessed with the natural disaster जो अभी आया नहीं है. So they have anxiety of the future कि अभी मैं I'm at this place, what if an earthquake comes? What if a flood comes? और इसकी वजह से they experience all the symptoms of anxiety disorders but related to climate. So because of the floods जो recent 2022 में आए थे, a lot of people have been experiencing climate anxiety. So mental health and climate anxiety in Pakistan, again, suicide rates are very high and we don't know why कि northern areas में cause किया suicide rates की. उसके बाद deserts में फिर एक phenomena है farmer suicide. That's also increasing day by day. Climate concentrated regions. उसमें the reason is कि we'll start with the northern plains, जो गिलगित बल्तिस्तान की रीजन है. उसके बाद अगेन द अफेक्टिंग सराउंडिंग एरियाज, बेसिकली वहाँ ठंड बहुत होती है. एंड वेयर देयर आर कोल्डर रीजन्स, कोल्डर टेम्परेचर, वहाँ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो फ्रीज हो जाता है. जैसे अगेन विल टॉक अबाउट हुंजा एंड गिलगित, जब वहाँ बर्फ पड़ती है तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है, आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रुक जाते हैं. उसके अलावा यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. देन क्या होता है, पीपल आर कन्फाइंड टू वन प्लेस ओनली, जहाँ दे विल स्पेंड मंथ्स ऑफ देयर लाइफ अलोन, which causes their depression to exacerbate. Aside from that, जो third region है, सिंध की जो hotter climates हैं, when we talk about the farmer suicide, गर्मी की वजह से crops fail to grow, उसकी वजह से they face adverse economic effects, lack of standard of living lower हो जाता है, which also causes this desperation and helplessness. और फिर इन लोगों के पास there's no other reason than to just kill themselves. Why? Because they're not aware of mental, not go out and seek help.
जो हमारा लोअर तबका है, people from lower socioeconomic domains, they cannot afford therapy, they cannot afford medication, they cannot afford PTSD. एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनकी जो मेंटल बिहेवियरल जो उनकी डेवलपमेंट है, दैट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पीटीएसडी, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. व्हाई? बिकॉज अगेन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कम है, नो वन टेल्स देम, दे हैव बेटर थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड वरी अबाउट. Before I continue, does anyone have any questions they would like to ask? Can you all see the slides? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम असल में ऐसा है कि जब मतलब सुबह उठते तो मतलब और रूटीन भी अच्छे है, सही है, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं करता और बाकी मतलब जहन में फजूल फजूल से ख्याल आते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा रिपीट करें दोबारा अपना क्वेश्चन. मेरा ये पूरा मतलब लाइफस्टाइल जो है ना अच्छा है, बाकी सही है, मतलब खाने को कुछ दिल नहीं करता, जहन में फजूल फजूल सा ख्यालात आते, मतलब फाइनेंशियली ठीक हो, फैमिली से भी कुछ मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये एंजाइटी फील हो रही है, ये फजूल फजूल से ख्यालात भी आ रही है, मतलब ये क्या मसला हो सकता है? इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज के रिलेटेड इस तरह की एंजाइटी हो रही है. बस बोर हो लाइफ से, मतलब ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ। एंजाइटी इज बेसिकली कोई ना कोई कनेक्शन होगा किसी ना किसी चीज से. डू यू लिव, आप क्या शहर में रहते हैं, या आपकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है, इज इट टू क्राउडेड? मैं पेशावर में रहता हूँ ज़्यादातर, और अभी मतलब गाँव शिफ्ट हुआ हूँ ना, 2 महीने हो गए कि गाँव में आ गया, मतलब शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर। और ये मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग दिस एंजाइटी फॉर? 2020 से आगे मतलब ऐसा ही होता रहता है मेरे साथ। ओके. सो बेसिकली जस्ट टू बी कनेक्टेड विद आवर सेशन, क्या आपको लगता है कि बिकॉज इज दिस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज या वेदर चेंज, इज सीजनल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना कि अपने आप को बिजी रखूँ, लेकिन फिर भी मतलब वैसा ही ख्याल आते हैं। मैं अपने आप मैं खुद नर्स हूँ ना, अपने आप को ज़्यादा से मतलब बिजी रखता हूँ, काम करता हूँ, मतलब मूड ठीक होता है, अचानक सा मतलब बिगड़ जाता है, ओके. विद इन फ्यू सेकंड मतलब मूड ऑफ हो जाता है। आई थिंक इसके लिए वी वुड नीड अ पर्सनल सेशन जिसमें हम प्रोब कर सके कि व्हाट इज कॉजिंग योर एंजाइटी, यस। because I would like कि हम we stick to the topic at hand. If it's not climate induced, then I think it's mostly कि आपका जो profession है, you're a nurse. So जो medical field में जो doctors and nurses हैं, they often experience a lot of anxiety and depression, which is very common. क्योंकि you go through a lot of different things, आपके पास हर तरह के patients आते हैं, and then आप उनको deal करते हैं, right? हाँ। So basically because उनके traumas, उनकी struggles rose, it's your duty to deal with them. So obviously you would have a lot of anxiety because of that. Sometimes mental health या physical health की fields में we have a lot of empathy. हाँ। We feel कभी कभार कभी हम बहुत ज़्यादा connect हो जाते हैं patient से, right? यस मैम। और कभी कभार ये होता है कि you have a patient जो you want to save लेकिन you can't save, यस। and you face a lot of deaths. हाँ। So basically your anxiety is due to your profession mainly, I would say. But then again, इसके लिए I would suggest कि a personal session would be better. ओके मैम। Yes.
क्योंकि मेंटल हेल्थ के अगेन जो मेडिकल प्रोफेशन में लोग हैं उनके लिए ये दिस कैन आल्सो बी अनदर सेशन, और इसमें मतलब अगेन जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स है हम वो भी बता सकते हैं बाद में, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज वन. इज दैट ओके? यस मैम, ओके, थैंक यू. सो मूविंग ऑन, जो क्लाइमेट चेंज से पीटीएसडी आती है लोगों में, व्हाई डज दैट हैपन? It's because mainly, sorry for the outside noise, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, उनकी वजह से फ्लड्स होते हैं, लोगों के घर देयर डिस्प्लेस्ड, देयर होम्स आर डिस्ट्रॉयड, उनकी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो टोटली चेंज हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, दे आइदर हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस या वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं. फिर इसके अलावा जो विक्टिम्स होते हैं इन कैलामिटीज के, दे हैव अ लॉट ऑफ इंजरीज, उनके लिम्स एम्पुटेटेड हो जाते हैं, या उनको हेड इंजरीज, हेड ट्रॉमा होता है, उनकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो ग्रेटली अफेक्टेड होती है. इस वजह से अ लॉट ऑफ दीज पीपल दे डेवलप पीटीएसडी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट स्ट्रिकन डिजास्टर्स. Other than that, the thing with climate disasters is that you may survive, but your family, your loved ones, your neighbors, people you know, उनकी death हो जाती है. So this loss of your normal life, ठीक है, loss of loved ones, loss of your social structure, loss of your environment, all these things can cause PTSD. और ये ज़्यादातर जो रूरल एरियाज होते हैं, जो गांव होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो पीटीएसडी से सफ़र करते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी इट गोज अपसाइड डाउन. जो शहर में रहते हैं लोग वो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, दे हैव द एक्सेस टू अदर फैसिलिटीज, लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं दे हैव नोवेयर टू गो. उसकी वजह से मोस्ट ऑफन देन नॉट 90% ऑफ दीज पीपल दे डेवलप पीटीएसडी. सिमिलर टू दिस, जो इफेक्टिव्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े तो people sometimes they spend their entire lives in one city, right? और जब आप पूरी जिंदगी एक शहर में रह के एकदम से दूसरे शहर में चले जाते हैं तो आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे. उसके अलावा you have a lot of generalized anxiety. Then you will find trouble forming new connections, socializing, because you start from zero. So because of that आपको उस वजह से भी PTSD डेवलप हो सकता है. So climate change के इफेक्ट की वजह से there's been a new term developed which is known as solastalgia. जो word है nostalgia, it comes from basically the solastalgia comes from nostalgia. That means कि जैसे आप जिंदगी पहले गुजारे थे before a natural disaster, you miss that life. आप वापस जाना चाहते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ, और उसी की वजह से समटाइम्स जो इफेक्टीज या विक्टिम्स होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते न्यू एनवायरनमेंट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट देन दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ साइकोसिस, जिसमें दे जस्ट रिमेंबर कि वो पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, पहले उनकी स्टेट ऑफ लिविंग कैसी थी, और इसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है. सो सोलेस्टैल्जिया इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम नॉस्टैल्जिया. That means you want to go back to the place jahan your old life, you develop anxiety, you develop depression, you develop a lot of physical and emotional imbalances. Okay, someone asked कि seasonal affective disorder क्या होता है? Seasonal affective disorder basically the changes in our behavior जो कि सीजन से आते हैं. इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल ये होगा कि कुछ लोग सर्दियों में दे गेट डिप्रेस्ड, दे डोंट लाइक द विंटर्स, या कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी से बहुत चिढ़ होती है. उनका बेसिकली विद द चेंज ऑफ सीजन उनका मूड शिफ्ट हो जाता है. जिन लोगों को सर्दियां बुरी लगती हैं वो सर्दी में चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल गो इनटू अ डिप्रेसिव साइकिल जो कि विच लास्ट फॉर 3 to 4 months.
उसकी वजह से उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होंगी, उनके मूड फ्लक्चुएशंस होंगे, क्राइंग स्पेल्स होंगी. So this is what basically occurs in seasonal affective disorder. The season affects your mental behavioral changes. And जो लोग who are not fond of summer, उनके साथ ये होगा कि उनकी समर की रूटीन बेसिकली चेंज हो जाएगी. ना तो वो फिजिकली एक्टिव होंगे, अगर एक्टिव हैं तो उनकी बाइपोलर टेंडेंसीज आ जाएंगी, और दे विल गो इनटू सोशल आइसोलेशन, बाहर जाने का दिल नहीं करेगा बिकॉज दे डोंट लाइक समर्स. तो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली आपके मूड पैटर्न्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय द सीजंस. दिस इज व्हाट सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर इज मोस्टली. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. लेट मी नो इफ यू आर सैटिस्फाइड. Okay, moving on. Thank you, Taiba. So, there have been a lot of scientific studies and psychological studies recently, क्योंकि climate change बहुत बढ़ रहा है. हमारे इधर पहाड़ों में आग लगती है, ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं. उसकी वजह से एक चेन इफेक्ट होता है लोगों पे. So to justify that, बताने के लिए, just to spread awareness कि how temperatures affect mental health. There has been a lot of studies जिन्होंने प्रूव किया कि जो hotter climates होते हैं, they have a direct correlation to aggressive behavior. जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ गुस्सा ज़्यादा आता है लोगों को, और जहाँ गुस्सा ज़्यादा होगा वहाँ crime rate increase होगा, social conflicts ज़्यादा होंगे, a lot of things occur due to aggression. और जो हॉटर क्लाइमेट्स हैं वहाँ लोग ज़्यादा यू विल फाइंड कि अग्रेसिव होंगे गर्मी की वजह से. कॉमन एग्जांपल ये कि गर्मी बहुत होती है, लोग जब सड़कों पे ड्राइव करते हैं तो बहुत हैज़र्ड पैटर्न होता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं. अगर एक्सीडेंट्स हो गए तो इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग, lose your loved ones, you lose your house, you lose your job, you lose your standard of living. So people get affected by that. Rural countries में suicide rate again is correlated to depression because climate change जब लोगों की economic standard of living को बहुत impact करता है, they fall into a depression. Number one is this. Number two, climate change की वजह से जो PTSD होता है, that also causes depression. And if people fail to mitigate or manage it, या कुछ लोग होते हैं जो overlook करते हैं अपनी psychological well-being को, उनके अंदर भी depression के जो rates होते हैं, they increase. So this slide is basically to show you the statistics कि climate change की वजह से हमारी जो पाकिस्तान की provinces हैं, उनमें suicide rates कितने ज़्यादा थे. You can see कि 2017 तक, from 2006 to 2017 and onwards, सिर्फ reported जो suicides हैं वो 203 हैं. And we have to keep in mind कि जो statistics होती हैं, they are only because जो चीज़ report की जाती है. काफ़ी ऐसी suicides हैं which have gone unreported. So we don't know how many people have been affected due to climate change. उसके बाद थारपक्कर की जो सुसाइड क्राइसिस थी 2022 में, वो 129 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड. ड्रॉट्स होते हैं, अगेन इकोनॉमिक हार्डशिप्स होंगी. फिर दिस कैन लीड टू स्ट्रेस लेवल्स ऑन द राइज व्हिच कॉजेस देम टू गो इनटू अ डिप्रेसिव. जो एक लीडिंग कॉज है जो मेंटल हमारी जो स्टेट को इफेक्ट करती है, that is overpopulation. How does overpopulation affect mental well-being and climate change? So इसका एक correlation है which I would like to tell because it's very overlooked. लोग इसके बारे में ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते. हमारी जो कंट्री है उसमें climate change क्यों ज़्यादा इफेक्ट चला जाएगा जून में टेम्परेचर, जून जुलाई में, उसके बाद ठंड क्यों ज़्यादा होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. हमारी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करती है
or to adjust that increasing population, we have to cut down forests to make room for new emerging population. ज्यादा शहर होंगे, ज्यादा कॉलोनीज बनेंगी, उसकी वजह से दरख्त ज्यादा कटेंगे, और जितनी कम ग्रीनरी होगी, जितनी कम बायोडाइवर्सिटी होगी, क्लाइमेट चेंज उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा. तो दिस इज एक्चुअली अ लूप कि क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग, ये पूरी एक लूप है, इंटरकनेक्टेड है, जो कि आपके बाकी के लाइफ के फैसेट्स हैं उनको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है. अगेन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड इफेक्ट्स हैं, या जो अगेन अर्थक्वेक, डिजास्टर, क्लाइमेटी स्ट्रक जो रीजन्स हैं, उन चिल्ड्रन, they're the ones who are mostly affected by climate change. So can anyone tell me कि climate change की वजह से औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा affect कैसे हो सकते हैं? Okay, so I'll just talk about कि how are women जो affectees होते हैं, they're displaced, ठीक है, refugees में camps में रहते हैं, या they move to different cities, new locations, जहां उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, एडजस्टमेंट उनकी मतलब सही नहीं हो पाती, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो, बिकॉज आई एम सॉरी टू से दैट वी लिव इन अ मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट? जो मेन होते हैं, दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, एंड जो मेन होते हैं, व्हेन दे गो आउट टू वर्क, they are suffering from the distress due to climate change, क्योंकि they're affected by these natural disasters. तो उसकी वजह से जो लोग होते हैं, जो the breadwinners of the family, उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता अपनी frustrations निकालने के लिए. They have no one to share their mental traumas with. और उसकी वजह से there's this phenomenon known as displacement. What they do is कि जो पूरे दिन का या जो उनका ट्रॉमा होता है, उसकी पूरी जो फोर्स होती है, उसका जो पूरा बिल्डअप होता है, दे टेक इट आउट ऑन देयर विमेन. डोमेस्टिक अब्यूज इस वजह से होता है, बिकॉज उनके पास कोई और आउटलेट नहीं होता अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. इसी वजह से yes, it's true कि farmers are also affected by climate change. मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ, पहले वाली, जिसमें मैंने वो बताया था फार्मर सुसाइड. एज यू कैन सी, जो थार पकड़ की सुसाइड क्राइसिस है, और जो ड्रॉट्स हैं वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स लाते हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रिमिनलिटी पे बहुत इफेक्ट होता है. कैन एनीवन टेल मी कि क्राइम रेट्स क्लाइमेट चेंज के साथ इनका क्या ताल्लुक है? हॉटर जो टेम्परेचर्स, हॉटर जो रीजन्स होती हैं, उनमें लोगों का, सो हॉटर क्लाइमेट्स में क्राइम रेट आपका इंक्रीज करेगा. इसके बाद, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड्स, सेवरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल स्टडीज जो हैं, उन्होंने डायरेक्ट कोरिलेशन निकाली थी बिटवीन हॉटर रीजन्स एंड बिगर क्राइम रेट. आप कराची की एग्जांपल ले लें, वेदर, इकोनॉमिक conditions can be a part of it, but the climate of Karachi does affect on the criminality of that city as well. उसके बाद जो कोल्डर रीजन्स होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट, एक तो हॉटर रीजन्स में क्योंकि एग्रेशन लेवल ज्यादा होता है तो ज्यादा क्राइम्स होंगी, जाती है. लोग ठंड में इतना ज्यादा मूव अराउंड करना नहीं प्रेफर करते हैं, रात जल्दी हो
जाती है, पीपल गो टू देयर होम्स। इसकी वजह से जो क्राइम रेट और क्राइम एक्टिविटी रात को ज्यादा इंक्रीज करती है। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी डज नॉट इंटरैक्ट इन कोल्डर रीजन्स। क्रिमिनोलॉजी में देयर इज दिस थ्योरी ऑफ डेली एक्टिविटीज। इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि एक ऑफेंडर होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑफेंडर, उसका ये मतलब है कि अ पर्सन हु इज हैबिचुअल ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, दे विल फाइंड अ सूटेबल टारगेट। उसके बाद दे विल लुक कि इस टारगेट के इर्द गिर्द आर देयर मोर पीपल और आर देयर लेस पीपल, क्या ये टारगेट वनरेबल है या नहीं। जब वो कॉस्ट और जो कॉस्ट एंड लॉस बेनिफिट एनालिसिस है, उसके बाद पहले वो पूरा विक्टिम को असेस करेंगे कि विक्टिम कितना वनरेबल है। when they see they sorry so crime likely occurs. Again, as you can see from the slides, जो theory of daily activity है, that suggests कि am I audible? Okay. सो द थ्योरी ऑफ डेली एक्टिविटी बेसिकली बताती है कि जो क्लाइमेट होता है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है विच इज परफेक्ट टू क्रिएट अ क्रिमिनल एक्टिविटी। गर्मियों में जो एग्रेशन है दैट प्रॉफिट्स टू क्रिमिनलिटी। सर्दियों में लोगों को ज्यादा मौका मिलता है बिकॉज सोशल इंटरेक्शन कम होती है। सो क्लाइमेट चेंज हैज अ लॉट ऑफ रिलेशन विद क्रिमिनलिटी। इसमें बहुत और थीरीज हैं which if you want, if you're interested in the relationship between climate change and criminality, you can look it up, you can ask me, मैं आपको थोड़े से research papers भी या थोड़े से links भी share कर सकती हूँ उसके साथ। उसके बाद theory of daily activities एक और चीज कहता है, बारिशें जहाँ नॉन स्टॉप होती हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, people don't come out as much as they do in normal temperatures। उसकी वजह से क्या होता है, it creates a blank area for people to carry on with their criminal activity। लोग जहां कम होंगे, जो criminals हैं, they will find the exact platform, क्योंकि वहां लोग नहीं है तो it becomes a target for them to commit a crime। उसके बाद climate change and domestic abuse। So basically जो I talked about this before कि domestic abuse कैसे आता है। Women and children जो होते हैं displaced communities के, they are more prone, they are an open target to climate change। उसकी वजह से ये होता है कि because जो the breadwinners of the family या जो people हैं, people of authority, as an outlet, they resort to domestic abuse। उनकी जो frustrations होते हैं due to climate change, because उनके पास कोई you could say प्रॉफिटेबल आउटलेट नहीं होता, दे डोंट गेट द हेल्प दे नीड, और उसकी वजह से दे बिकम सो कंफ्यूज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि वो जाके सारी फ्रस्ट्रेशन दे टेक इट आउट ऑन द वुमेन एंड चिल्ड्रन। वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड मेंटल हेल्थ? ओके, सो दिस इज जस्ट बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी, उनमें बेसिकली देयर इज दिस न्यू रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल ही, विच टॉक्स अबाउट इमरजेंसी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू क्लाइमेट स्ट्रिकन एरियाज। पहले पाकिस्तान में एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी साइकोलॉजिकल एड नहीं होती थी, बट नाउ बिकॉज मेंटल हेल्थ इज बीइंग डीस्टिग्मेटाइज्ड, ये एक न्यू रिफॉर्म आ रहा है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट इफेक्टेड एरियाज हैं उनमें फॉरेन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इंट्रोड्यूस की जा रही है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट दिस इज जस्ट अ वे फॉरवर्ड, यू नो। अगेन इसमें और मेजर जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं विच कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेंटल हेल्थ। सबसे पहली बात है डीस्टिग्मेटाइज। यू हैव टू डीस्टिग्मेटाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। आप जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे अबाउट मेंटल हेल्थ चेंजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, उतने ज्यादा आपके पास प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सेस होंगे। फिर
साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, इमरजेंसी फर्स्ट एड, टेली साइकाइट्री, जो फोन पे आपको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड मिलती है. अगेन अदर देन दैट हमारे पास जेंडर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होने चाहिए. सो दीज आर बेसिकली मेन possible outlets which can deal with climate change. So हमारे पास अभी 10 minutes हैं. We'll start with the Q&A. You can present any questions you have related to the whole session. Are there any questions? कोई भी कुछ पूछना चाहे, please feel free to ask. No one will ask any questions. Okay. How to manage our moods? Okay, how to manage our moods during climate change. इसमें सबसे important चीज़ ये है कि you have to be aware कि आपके mood की जो fluctuation है वो आई कहाँ से है, आपका mood खराब किस चीज़ की वजह से हुआ है, personal reasons, job reasons हैं, reason क्या है. और अगर आपको लगता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा आपका mood affect होता है, so the thing is कि पहले आप उसको you have to identify what is causing your mood. When you identify कि अगर सपोज क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी मूड फ्लक्चुएशंस हैं, देन उसको मिटिगेट करने के लिए काफ़ी और चीज़ें आगे आ जाती हैं. सपोज आजकल गर्मी बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, काम नहीं होता ज़्यादा, मूवमेंट नहीं होती ज़्यादा, उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, यू फाइंड अदर हॉबीज, आप घर भी रह सकते हैं, या यू हैव टू लर्न वेज टू कीप योर सेल्फ कूल. ठंडा पानी पिए, ठीक है. उसके अलावा जो अगर आपके पास एसी इन्वायरमेंट नहीं है, टू ट्राई टू कीप योर सेल्फ एज कूल एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप अपने आप को फिजिकली कूल रखेंगे तो आप मेंटली भी कूल रहेंगे. सो बेसिकली मेजर ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मूड आ कैसे रहा है, चेंज आ कैसे रहा है. अगर ये वेदर की वजह से है तो वेदर की वजह से आपको यू हैव टू एडजस्ट ऑप्टिमली. ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, वो खुद ही रिकवर हो जाती है या कंसल्ट करना चाहिए? दैट डिपेंड्स. समटाइम्स ये होता है कि वी फील एजिटेटेड, हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, लेकिन देखें गर्मी है, गर्मी के बाद बारिश आती है, वी फील ऑल राइट. सो दैट्स बेसिकली मूड फ्लक्चुएशंस जो नेचुरल हैं. लेकिन अगर कुछ लोग हैं अगेन जैसे पीटीएसडी हो गया जिनको, या जो लोग वेदर की वजह से more than 6 months, I'd say if they're affected more than 6 months, जिनको seasonal affective disorder है, then they need to consult. क्योंकि जो वेदर है वो रोज दिन ब दिन की मूड फ्लक्चुएशंस कॉज करता है, दैट इज नॉर्मल, और वो खुद भी ठीक हो जाती है. लेकिन अगर आपके मूड डिस्ट्रप्शन more than 3 to 6 months है, then I think it's better if you consult someone. Okay, living in underdeveloped country, how a layman will manage it? Layman manage नहीं करता, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है as mental health practitioners. We spread awareness and we provide psychological services. लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं करते, इसलिए जो एनजीओज होती हैं उनके साथ जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, दे वर्क, वो इन एरियाज में जाके अवेयरनेस भी करते हैं, फिर थेरेप्यूटिक सेशंस भी देते हैं, और इमरजेंसी साइकोलॉजिकल एड भी होती है. So layman को खुद नहीं पता चलेगा. It's our duty to inform the layman about these things. What to do in winter depression? Winter depression, again, winter depression can be managed. Sorry, yes. Winter depression depend करता है कि आपको किस तरह का डिप्रेशन है. अगर वो समर के साथ चला जाता है तो I suggest कि आप विंटर में try to keep yourself busy with activities which make you happy. आप रीडिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा ठंड में जाने की जरूरत नहीं है. और अगर इन चीजों की जो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, हॉबीज हैं, इफ योर मूड इज स्टिल, अगर आप यू कंसल्ट प्रोफेशनल हेल्प. How do I join personal session? I think
after this session, with the owner of this institute, मैं आपके साथ details share कर सकती हूँ. I can share some good mental health and psychological platforms जिनके ऊपर you can seek help. And depend करता है कि आपको personal अगर session चाहिए तो I think this would be done greater after this session. Yes, prolong भी हो सकता है depression और anxiety, लेकिन आपको उसका टाइम फ्रेम एक आपको नोट करना पड़ेगा. अगर आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी 3 मंथ से ज्यादा है, देन इट डिमांड्स साइकोलॉजिकल हेल्प. अगर 3 मंथ से कम है तो वो इट्स मेनली ड्यू टू द सीजन एंड योर एनवायरनमेंट, और वो आप खुद भी विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प आप उसको मिटिगेट या एडजस्ट कर सकते हैं. एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, we still have 2-3 minutes left. If there are any more questions, to please do let me know. और अगर सेशन के बाद भी किसी को रेफरेंसेस चाहिए या किसी को लिंक्स चाहिए तो वो भी they can let me know. I can share all the information जो इन स्लाइड्स में थी to you. Done. So we'll wrap it up. Basically, this was just an informative session to spread awareness about climate change और mental health पे कितना ज़्यादा impact करती है. Thank you so much, Taiba. Thank you. Bless you. Jazakallah. I will share the slides with you. No problem. So again, I hope कि इस session से you will get at least 1% an increase in your information. Or when you go to practice on your own, आप इसको climate change को भी you can keep in mind कि इसकी वजह से भी कितने adverse effects होते हैं. Thank you so much. So अगर कोई और questions नहीं है तो let's end the session. हम session end कर दें. Okay, thank you so much. It was great, a very wonderful experience interacting with you all. And I hope if I get the opportunity again, तो हम एक more interactive session in the future रख सकें जिसमें I would get more participation. But since it was also my first time, so forgive me for any mistakes I did. And again, thank you so much for all of your time. God bless you all. Dafiz.